खिमनाई साहब ऐसी शख्सियत है जो बर्बरियत के सामने झुके नहीं। He is a leader, he is a spiritual leader, नहीं, not just a political leader. सोगवार इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो शहीद हुए हैं, क्योंकि सोगवार इसलिए हुए हूँ क्योंकि उन्होंने हमें छोड़ दिया है, हम यतीम हो गए हैं। Definitely there were many issues, but that is not the point over here. The point is वो सारे issues Iranians के लिए अपने resolve करने के लिए। Scenes like these were seen in several parts of India, from Srinagar to Hyderabad, after the news of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei's death broke out. US-Israeli strikes on his compound in Tehran killed him on 28 February 2026. For many observers, one question stood out. Why were so many people in India mourning the death of a leader who lived so far away? I'm proud India. But Iran is some kind of country जिसको हम दिल से लगाते हैं। Ayatollah Ali Khamenei was a leader who evoked extreme opinions on either side. While a lot of people saw him as a spiritual guide, others saw him as a dictator and a symbol of state repression, particularly when it came to policies surrounding women, such as the mandatory hijab law, and curbing dissent overall. His leadership was often judged in opposing terms, and even in death, he left the world and Iran itself divided between mourning and celebration. It has been a few days since the tensions between Iran and US escalated. Today we are here at the Iran Culture House in the heart of New Delhi to understand what is still bringing people here. I'm a Sunni Muslim. I do not belong to the Shia sect. लेकिन एक दर्द है, और सैयद अली खिमनाई साहब ऐसी शख्सियत है जो बर्बरियत के सामने झुके नहीं। वो नेहरू के बारे में हमें वो ऐसे रिकमेंड करता था कि नेहरू के बारे में पढ़ो, गांधी जी के बारे में पढ़ो। I belong to Shia school of thought. तो मेरा जो हमारे इमाम खामनाई साहब से कनेक्शन ये है कि he is a leader, he is a spiritual leader, नहीं, not just a political leader. Before becoming Iran's supreme leader in 1989, Khamenei was a Shia cleric, trained in Islamic theology and known for his sermons and religious writings. Ali Khamenei died on 28 February 2026 after coordinated US-Israeli strikes targeted his compound in Tehran. Over the decades, he emerged as one of the most influential voices in Shia Islam, with followers and admirers far beyond Iran. मैं आज यहाँ पे आई हूँ आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, जिनको मैं भी उनकी बहुत बड़ी फॉलोवर हूँ, उनके शहादत के सोगवार में आई हूँ। सोगवार इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो शहीद हुए हैं, क्योंकि सोगवार इसलिए हुए हूँ क्योंकि उन्होंने हमें छोड़ दिया है, हम यतीम हो गए हैं। हम जो मुसलमान हैं, हम उनको फॉलो करते थे, हम यतीम हो चुके हैं उनके जाने की वजह से। वो हमेशा से तलबगार थे शहादत की, और हमें पता है कि वो कितना चाहते थे शहादत को, लेकिन उनकी शहादत का असर हम पे हुआ है। We already know the situation कि एक स्टूडेंट और एक गुरु के बीच में क्या कनेक्शन होता है। So हमारे रिलीजियस लॉस के अकॉर्डिंग हमें जब लड़के लोग 15 साल, मतलब एक ऐसा तो ईयर आता है जिस ईयर पे आप पहुंचने के बाद आपको किसी न किसी एक ऐसे रिलीजियस लीडर का आपको फॉलोअर बनना पड़ता है जिसको आप पूरी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे। आई सा हिम एज एक ऐसी शख्सियत की नज़र से देखता हूँ जो हमारे लिए अक्स था, हमारे लिए वसीला था, हमारे लिए एक ज़रिया था। Islam is divided in two main branches, Sunnis and Shias. The division dates back to the 7th century after the death of Prophet Muhammad over the question of who should lead the Muslim community going forward. While Sunnis believed the leader should be chosen by consensus among the community, Shias believed the leader should remain within the Prophet's family, beginning with his cousin and son-in-law Imam Ali. By 2016, Shias made up about 10% of the Muslim population, which was roughly 200 million people worldwide. आयतुल्लाह खामेनेई जो है वो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सिर्फ मुसलमान और शिया ही नहीं, बल्कि जितने भी ऑप्रेस्ड पीपल हैं अक्रॉस द ग्लोब, इवन वेनेजुएला की भी बात हो तो वहाँ पे भी आयतुल्लाह खामेनेई अपना सॉलिडरिटी एक्सप्रेस कर रहे थे। पिछले 2-3 सालों से जब से गज़ा के अंदर जो नरसंहार हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, जिसके ऊपर पूरा अरब देश, पूरे जो है वो दुनिया के मेन जो ताकतें हैं वो सब खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। ऐसे में एक अगर कोई मजबूत आवाज़ थी तो वो आयतुल्लाह खामेनेई की आवाज़ थी, जो गज़ा के लोगों के लिए, जो फ़लस्तीन के लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठाते थे। और जो शहादत भी उनकी हुई है उसका जुर्म उतना ही है कि उन्होंने फ़लस्तीन के निहत्ते लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठाई। ईरान एज़ ए कंट्री जिसको हम दिल से बहुत चाहते हैं, बेशक हमारी मदरलैंड इज़ आवर इंडिया,
हम फ़ख्र के साथ कहते हैं वी आर इंडियंस, बट ईरान इज़ सम काइंड ऑफ कंट्री जिसको हम दिल से लगाते हैं, बिकॉज उसमें हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं, मात्र लोग ही नहीं, वो एक ऐसी जगह था जहाँ पे हमारी यू कैन से रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़ी हुई है, बिकॉज़ वहाँ पे हमारे बहुत सारे इमामों की, बहुत सारे नबियों की वहाँ पे कब्रिस्तान भी है, और उनके भी रहने की जगह ऑलरेडी हिस्ट्री में आ रहे होंगे। India is also home to one of the largest Shia population in the world. Estimates from 2009 suggest that around 20 million Shia Muslims lived in India. They are concentrated in regions of Uttar Pradesh such as Lucknow and Barabanki in the Kashmir Valley, as well as some pockets of Hyderabad and Mumbai. Following the news of Khamenei's demise, mourning gatherings and protests were reported in many of these areas. आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत ने जो एक रेजिस्टेंस था उसको मज़ीद ताकत दी है, उसको मज़ीद क़ुव्वत दी है। देखिए 89 साल की उम्र में तो तकरीबन आदमी का आखिरी वक्त के करीब हो जाता है, लेकिन एक बिस्तर में मर्ग बिस्तर में मरने से बेहतर समझा कि वो फ्रंट पे अपने लोगों के साथ, क्योंकि इनके बारे में इतना प्रोपेगेंडा किया कि मास्को भाग गए हैं, इतना प्रोपेगेंडा किया कि जो है वो बंकर में छुपे हुए हैं, और लास्ट टाइम में वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने ऑफिस में पाए गए और वहाँ वो शहीद हुए। The presence of large Shia communities in northern India have deep historical roots. Many of them trace their heritage back to the old region of Awadh. During the Mughal and early colonial period, Awadh emerged as a major kingdom, spanning large parts of present-day central and eastern Uttar Pradesh. Most importantly, the Nawabs of Awadh were Shia rulers. Under their patronage, Shia religious traditions flourished, from grand imambaras to elaborate Muharram processions that are still held today. Every year, thousands of Indian Shias travel to Iran and Iraq for pilgrimages to revered shrines in Mashhad, Najaf and Karbala. Because of this centuries-old legacy, cities like Lucknow remain among the most important centers of Shia cultures outside Iran and Iraq. और आप क्या सोचते हैं ये जो एस्केलेशन किया है यूएस ने ईरान पे, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? देखिए डोनाल्ड ट्रंप और ये जो पूरा एप्स्टीन क्लास है, उन्होंने इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह इन्होंने पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी जितने भी ममालिक हैं, उनके जितने भी देश हैं, उन लोगों को ये जब से पावर में आया है ह्यूमिलिएट कर रहा है। ईरान के अंदर भी इसने यही जुर्रत, यही जारहियत दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये भूल गए कि जो ईरान के लोग हैं वो गाज़ा के बच्चे नहीं हैं कि आप जिनके ऊपर बम बरसाओगे तो वो बेचारे कुछ ना कर सकें क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। ईरान अपनी पूरी तवानाई के साथ लड़ रहा है। दूसरा यूएस और जो इज़राइल और दूसरे वेस्टर्न ये हैं, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं ईरान को लिबरेट करें, वुमेंस को, वहाँ के लोगों को आज़ादी दे, उनको थोड़ा फ्रीडम दे दें, और कुछ अभी कंडीशन है, इकोनॉमिक जो कंडीशन है, क्राइसिस है, उनको थोड़ा हम सही करें। तो आयरनी इसमें ये है कि एक तो आप सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगा के उसकी हालत ख़राब कर रहे हो, इकनॉमी इतनी बुरी हालत है उसमें, सैंक्शंस हटा दीजिए। अगर आप रियली चाहते हो कि ईरान डेवलप करे तो वाई यू आर इंटरफेयरिंग इन इंटरनल इश्यूज़। दैट्स द रीज़न कि ईरान, अगर हम ये देखें कि भाई यहाँ पे वेस्टर्न का या जो ज़ियोनिस्ट रिजीम है बैकेड बाई इज़राइल एंड नेतन्याहू, वो क्यों इंटरफेरेंस करें? अगर आप रियल में चाहते हो तो उनको अपने हिसाब से ये कर दीजिए। कि ईरान एक रिसोर्सफुल कंट्री है, स्पेशली पेट्रोलियम, गैस, फिर उसके बाद और मिनरल्स हैं उनके लिए, तो ईरान इनको सीज़ करना चाहता है। ईरान किसी की वहाँ पे, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि वुमेंस पे वहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है, लोगों को इनजस्टिस हो रहा है, तो यही लोग हैं कि रिसेंटली इसी स्ट्राइक में 165 लड़कियों को तो इन्होंने मारा, तो इनकी बातें जो है ना यहीं पे साबित होता है कि झूठ बोल रहे हैं। ये लोग यहाँ पे दमन के तहत आके यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं और एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं यहाँ के रिसोर्सेज को। हमने इराक वार में ये चीज़ देखा, हमने अफ़गानिस्तान में ये चीज़ देखा। हम हमेशा इन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये चीज़ें किया है वर्ल्ड में। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में वी आर प्राउड इंडियंस आल्सो, डोंट टेक इट कि ये किसी और रंगत की वजह से देख रहे हैं। वी आर प्राउड इंडियंस, आई एम प्राउड इंडियन। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सरकार इसमें मुदाखलत करे, वो पूछे इनसे कि किस ताकत की वजह से, किस ताकत की किस बर्बरियत से आप लोगों ने एक सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया। It is unfair and they said that they are acting in defense, whereas
ऐसा कोई नेगोशिएशंस चल रही थी जो पिछले साल जून 2025 में भी नेगोशिएशंस चलने के बीच में अटैक हुआ, इस बार भी बीच में अटैक हुआ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एज अ वुमन, जैसे अभी ईरान में भी 2 बंटवारे हो गए हैं, कई लोग बहुत दुख मना रहे हैं और कई लोग खुशी मना रहे हैं, तो एज अ वुमन आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? एज ए वुमेन मैं उनके ओपिनियन को तो वो नहीं कर सकती, बट मैं जितना मैं खुद को जानती हूँ, मैं इस चीज़ को वो करती हूँ कि जो है इनकी शहादत मेरे लिए बहुत दुखवार है। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब हम बहुत ज़्यादा दुख में है कि इनकी शहादत के बाद। और एज ए वुमेन मुझे लगता है कि मुझे लगता है ऐसे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मेरी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लीडर मुझसे छीना गया है। तो आपको लगता है कि ईरान में जो वुमेन को लेके जो लॉज थे वो आपको ऑप्रेसिव लगते हैं कि नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लगते हैं। ओपिनियन पे डिपेंड करता है कौन कैसा। For decades, women's rights in Iran have been shaped by the country's Islamic political system and have been a topic of debate, especially under the leadership of Ali Khamenei since 1989. While Iran's constitution allows women access to education and participation in public life, several laws regulate their daily lives from dress to marriage. One of the most visible rules is the mandatory hijab law. Since the 1979 Islamic Revolution, women in Iran have been required to cover their hair and dress modestly in public. In recent years, stricter legislation have imposed heavy fines and restrictions on women who do not follow the dress code. The issue gained global attention after the death of Mahsa Amini in police custody in 2022, after she was arrested for allegedly violating hijab rules, sparking nationwide protests. Critics around the world say the law undermines women's freedom and autonomy. The marriage of girls as young as 13 is legal in Iran, and for boys, the legal age for marriage is 15. Although women make up a large share of university students, but they are restricted from studying in certain fields such as chemical engineering by some universities itself labeling them as men-only fields while admissions. In recent years, the protests inside Iran have become one of the largest women-led movements in West Asia, highlighting the growing debate within Iranian society about women's rights and personal freedom. They have issues वहाँ पे है जो बहुत सारे अपोजिशन करते हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ईरान को ऐसे वो लोग शो करते हैं वेस्टर्न मीडिया कि मतलब वहाँ पे ना कहाँ डिप्राइव कर रहे हैं लोगों को, और जो नाच रहे हैं अभी ऑब्वियसली दे हैव बीन सेलिब्रेटिंग। और जो रिज़ा शाह का जो ये है वो ख़ुद बैठे हैं यूएस में और कहीं फॉरेन कंट्री में और एक कह रहे हैं कि हम ईरान को सेलिब्रेट करेंगे। तो खुद आ जो ईरान, you have been celebrating out of the country and you are saying okay we are going to celebrate you guys. Definitely there are many issues, but that is not the point over here. The point is वो सारे issues Iranians के लिए अपने resolve करने के लिए। आप कोई बाहर से आके अटैक करेंगे ये बोल के कि अब हम आपके इश्यूज रिजॉल्व कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। ये हम मॉडर्न एज में हैं, एक यूएन चार्टर है। You cannot invade countries and tell them what to do. It's for Iranian people जो वुमेन के इश्यूज़ हैं या फिर कोई भी इश्यूज़ हैं, अरेस्ट हो रही हैं, कुछ भी हो रही हैं, उनका इंटरनल मैटर है। एंड इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है दैट इंटरनल मैटर्स हैं, इट शुडंट बी इंटरफियर्ड विद।